You are welcome to my online English class, and in this particular session we are going to take up the sentences with modal auxiliaries, and in this video we are going to learn the rules for converting these sentences from active voice into passive voice with the help of some sentence construction. Please do watch this video till the end. Active and passive voice with modal auxiliaries. We know that modal auxiliaries are the helping verb which are used to show the mode of action in a sentence. They are, as I have already made a video on this topic, they are 13 with 5 extra modals. Overall they are 18 in numbers. May, might, can, could, shall, should, will, would, must, ought to, dare, need, used to, have to, has to, shall have to, and will have to. How we convert these sentences into passive voice? We first make these sentences on active voice and then we change these sentences into passive voice. The construction for this is here: subject plus modal auxiliary plus verb first form plus object. Sentence number first: I can do this work. Sentence number 2: you must obey the rules of the nation. Sentence number 3: we ought to help the needy. Sentence number 4: he could solve this problem. Sentence number 5: she might help you in this matter. Sentence number 6: one should do one's duty. These are the sentences. How we convert them into passive voice. Now we also make sentences with negative, negation, and then we convert both the affirmative as well as negative into passive voice. The rule for negative sentence is here in active voice: subject plus modal
auxiliary plus not plus verb first form plus object. Sentence number first, animals cannot make tools. You need not help us. Sentence number third, he should not abuse others. Full stop. Now how we convert these sentences in passive voice? First, affirmative sentence. The construction is here in passive voice. Subject, that is object again. Modal, auxiliary plus be plus verb third form plus by and plus agent, that is become the subject, object. Sentence number first, I can do this work. मैं यह कार्य कर सकता हूं. अब क्या हो जाएगा? यह कार्य मेरे द्वारा किया जा सकता है. तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं यहां पे. इसका पैसिव किस तरह से होगा? हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. तो ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क. दिस वर्क ऑब्जेक्ट ये बनने के बावजूद भी देयर विल बी नो चेंज इन मॉडल. मॉडल वही रहेगा, उसकी फॉर्म भी चेंज नहीं होगी. दिस वर्क कैन, केवल इसके बाद बी लग जाएगा. बी और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी डन. दिस वर्क कैन बी डन बाय, ये तो पहले वाला रूल है, आई बिकम्स मी. यह कार्य मेरे द्वारा किया जा सकता है. सेंटेंस नंबर 2, यू मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द नेशन. आपको राष्ट्र के नियमों का पालन करना चाहिए. अब क्या हो जाएगा? राष्ट्र के नियमों का पालन आपके द्वारा किया जाना चाहिए. आगे क्या आ जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है. दीज 4 और 5 वर्ड्स, दी रूल्स of the nation must be, मैंने बताया मॉडल चेंज नहीं होगा, बी लग जाएगा उसके बाद वर्क की थर्ड फॉर्म होगी ओबे की, ओवेड. फिर बाय लगेगा, बाय यू बिकम्स यू. यू का यू ही रहता है. राष्ट्र के नियमों का पालन आपके द्वारा किया जाना चाहिए. सेंटेंस नंबर 3, वी ऑट टू हेल्प द नीडी. हमें जरूरतमंद की सहायता करनी ही चाहिए. क्या हो जाएगा? द नीडी ought to be
helped by we become us. जरूरतमंद की सहायता हमारे द्वारा की जानी ही चाहिए. सेंटेंस नंबर 4, he could solve this problem. वह इस समस्या का समाधान कर सकता था. तो क्या हो जाएगा? इस समस्या का समाधान उसके द्वारा किया जा सकता था. दिस प्रॉब्लम could be solved by he becomes him. ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हिम हो जाएगा. इस समस्या का समाधान उसके द्वारा किया जा सकता था. नेक्स्ट सेंटेंस है 5 नंबर, शी माइट हेल्प यू इन दिस मैटर. इस मामले में वह आपकी सहायता कर सकती है. तो यू माइट बी हेल्प्ड by her in this matter. Sentence number 6. One should do one's duty. कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए. कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? वंस ड्यूटी शुड बी डन बाय वन. वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है. जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है, अब इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे मॉडल ऑक्सिलरी के, उसका रूल ये बता रखा है. उसका फर्स्ट सेंटेंस ये, तो एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स. पशु औजार नहीं बना सकते हैं. तो क्या हो जाएगा? औजार पशु के द्वारा नहीं बनाए जा सकते. सेंटेंस नंबर फर्स्ट किसका होगा? नेगेटिव का. केवल नॉट लग जाएगा, इसलिए मैं रूल नहीं लिख रहा हूं. अदरवाइज तो रूल क्या हो जाएगा? यहां पे केवल नॉट लगाना है. ठीक है. तो जो मॉडल के बाद नॉट आ रखा है, आप देखिए, टूल्स कैन नॉट, ये तो एक ही वर्ड है. कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स. औजार पशुओं के द्वारा नहीं बनाए जा सकते. यू नीड नॉट हेल्प अस. तुम्हें हमारी मदद करने की जरूरत नहीं है. तो क्या हो जाएगा? वी नीड नॉट बी हेल्प्ड बाय यू. हमारी मदद तुम्हारे द्वारा नहीं की करने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, इस तरह से सेंटेंस होगा. सेंटेंस नंबर लास्ट, ही शुड नॉट अब्यूज अदर्स. उसे
दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। अब क्या हो जाएगा, दूसरों को उसके द्वारा गाली नहीं दी जानी चाहिए। अदर्स शुड नॉट बी abused by him, he becomes him। तो इसमें दो तीन चीजें आपने देखी होगी, जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बाद नॉट आता है, नॉट अपने स्थान पे रहता है, मॉडल में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कैन का कुड नहीं होगा, ये कुड का कुछ और नहीं होगा। इस तरह से हम ये कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करके इस पे मास्टरी हासिल कर सकते हैं। Thank you for watching this video.